नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग to our viewers in China, ni hao, to our viewers in Japan, konnichiwa. Abaru yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. और आप सब लोगों को पहली नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माता दी, जय भवानी, जय दुर्गा माँ। आज पहली नवरात्रि है प्रदीप जी। Yes. शरद नवरात्रि, मतलब this is the big नवरात्रि। और इसके बाद आगे आएगा दशहरा, फिर उसके बाद करवा चौथ और उसके बाद दिवाली। Because as I said, in Mumbai especially, the festival season starts with the dahi handi, the Janmashtami, और उसके बाद वो चलता रहेगा होली तक। मतलब कोई तकरीबन 6 महीने ऐसे होते हैं मुंबई शहर में एटलीस्ट, और बाकी हिंदुस्तान में भी, which is just one festival season after the other. And if you remember when we were in that, I think we were in Sahara at that time. Exactly. Yes. जयंत पाटिल साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनको इंटरव्यू करते वक्त गणेश विसर्जन के वक्त अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम लोगों ने यही उनको सजेशन दिया था कि सर, why didn't you turn this into a great festival, into the just like you have the carnival in Brazil, yes, which of course stands for lots and lots of glamour, sex and other things. A religious kind of festival in Mumbai and elsewhere, and provide proper tourist facilities, etc., etc. I think you will get God knows how many million tourists every year in just Mumbai alone. Yes, I recall you told him that. You told him that, and he said he's working something on that. We told Vilas Rao Yes, Deshmukh also. We told him also. पृथ्वीराज चौहान साहब तो मतलब सुनते थे और पता नहीं क्या करते थे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हर चीज हम लोगों ने। And other thing, a major thing that you told them was turning Mahalakshmi race course into a kind of gambling zone or something. Yes, I did. I said let's have a gambling park here. In any event, तो आपकी कर्ब ऑफ द कर्ब गैम्बलिंग तो चलती है, इसी तरह उसको लीगलाइज कीजिए। Can you imagine the amount of money you'll make? But and you got races, horse races going on over there. Yes. And if you're trying to tell me that the limit placed on them, which is about 500 rupees, is being adhered to by all the punters, you got to be kidding me, man. I mean, it's like I don't even know where to begin, where to end. But in any event, great news as far as Mr. Modi is concerned. Mr. Modi said again and again and again, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, be Indian, make Indian, buy Indian, ऐसा करके मोदी जी ने कहा है। Exactly जो पंडित नेहरू ने कहा था 1953, 1954 में, वही बात अब मोदी जी दोबारा दोहरा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाकर के लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे और काम करेंगे। There was a movie on Mera Desh Pehla on Narendra Modi, The Untold Story, and नीता अंबानी जी यहाँ पर एक बड़ा लॉन्च किया था at just beside us in Reliance BKC, Reliance The Geo Center BKC, and all the top Bollywood stars, everybody was there. Yep. Who's of Bollywood was there, trying to tell Mera Desh Pehla, untold story of Prime Minister Modi. Fantastic. So I think we've got some great guests with us. Let's go straight to them. Is our guest with us? Or our guest with us, please? Yes, we've got Ali Darwala Sahab and we've got Sanjay Dwivedi ji. Yes. And I think that third window has been kept for Dr. Pooja Mishra, if I'm not mistaken. Yes. And I don't know why she is not there. And why do we have a window there? अली दारवाला साहब और संजय द्विवेदी जी, आपको सबको पहली नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी को भी, देशवासियों को भी पहली नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। सारे दुश्मनों का सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब दुश्मनों अपना आशीर्वाद दें, सब दुश्मनों का सर्वनाश हो, सबकी ऐसी की तैसी हो, दुश्मनों का सर्वनाश हो। करेक्ट है। और सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? गरीबी, बेरोजगारी और द्विवेदी जी कुछ बोलिए, और क्या है? और क्या है सर? ये तो लैक ऑफ एजुकेशन। मानते ही नहीं सर, बेरोजगारी, गरीबी को सर, बेकार आप चक्कर में फंस रहे हैं सर। ये तो मानते ही नहीं सरकार ना। अभी देखिए बैठे हो, आप पूछ लीजिए। पूछता हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ देश में सर, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। महंगाई देश में है ही नहीं सर, मैं जा रहा हूँ। डीजल के दाम बढ़े ही नहीं, गैस के दाम सर बढ़े नहीं। बट दारवाला साहब, दैट रेड टी-शर्ट, वाओ,
Darwala Saab, you're looking really good in that red t-shirt, yeah, fantastic. I told you, he always looks like a Thank boxer you. for me. I see him Yeah, like a he boxer. is really good, yeah. He Bantamweight looks really boxer. good. And I see him all over the place. I mean, he's the chief Yes, guest yes. everywhere. हर जगह पे chief guest, हर जगह पे इधर उधर 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 क्या बात सर मतलब धंधा वंदा आजकल शायद छोड़ दिया बिल्कुल. Darwala Saab is not paying attention to his business. No wonder his wife is angry with him. क्या कर क्या रहे हो यार? ये RSS के पीछे पड़े हो, पता बीजेपी के पीछे पड़े हो, क्या क्या मिलने वाला है इनसे? सर लेकिन एक चीज है, मोदी जी ने अपने एड्रेस में जो बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आई एग्री विद इट कंप्लीटली. लेकिन क्या है कि वी गॉट सच अ कसेड ऑपोजिशन. हर कोई बोल रहा है कि मोदी जी की ड्रेस देखो, क्या जॉर्जियो आर्मानी के कपड़े पहनते हैं. व्हेन डिड जॉर्जियो आर्मानी स्टार्ट टू डिजाइन कुर्ता पजामास? आई डोंट नो. From whatever I have been able to find out, Giorgio Armani never in his life, he just died about 10 days ago, never in his life did he ever design a kurta pajama or any Indian dress. But in any event, people said it. He wears a Movado watch, wears Ray-Ban glasses, wears what? A Patek Philippe, whatever. Wears pens. Each pen costs God knows how much. Why don't they look at the thrust of what he has said? I mean, that's being sad. And pointing out at the Range Rover with him. Sir, have they forgotten कि रेंज रोवर तो टाटा बनाते हैं सर. रेंज रोवर, that Jaguar Land Rover has been bought by the Tatas. That's an Indian company. I mean, I don't even know where to begin. और ठीक है यार, BMW और Mercedes इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो मनमोहन सिंह भी इस्तेमाल करते थे, इंदिरा जी भी इस्तेमाल करती थी. जो डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टेरियल कार होती है वही इस्तेमाल करेगा ना आदमी. अब आप इसके बारे में बोले, हाँ इतना जरूर है दारूवाला साहब, अभी मैंने ये सुना है, ये सुनने में आया, and I'm sure the news is absolutely correct. अभी ये GST 2.0 उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, IT सेक्टर के लिए we are going to get so many subs from all over the place that India is going to be a great destination to do business. That's what I've been told. I think it's in the planning stage. By November we'll have this. That's what I've been told, and I am sure my source in the finance ministry is not wrong. Sir, आप बताएं आप. दारूवाला साहब, please go ahead. सर की आवाज नहीं आ रही ठीक. बोलिए सर. अभी आ रही है? Yeah, अभी आ रही है सर, बोलिए. या सब मैं कहता हूँ, क्या मोदी जी क्या कपड़ा पहन रहे, क्या शूज पहन रहे, क्या वॉच पहन रहे, क्या गॉगल्स पहन रहे, सर हमें गर्व होना चाहिए. नाउ आई विल जस्ट रिपीट माई सेल्फ. जब राजीव गांधी जी जो एक जोधपुरी पहनते थे, जो हिसाब से वो रेबैन पहन के जाते थे, सर हमें गर्व होता था. वी यूज्ड टू बी प्राउड. हमने कभी नहीं पूछा ये कौन सा कपड़ा है, कैसा मीटर है. सर दिस पीपल शुड लुक द बेस्ट. वो आज इतनी बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे, अब वो स्मार्ट दिख रहे, फिट दिख रहे, उनका एक फिजिकल हेल्थ अच्छा है. इससे हमें गर्व होना चाहिए सर. वी शुड नॉट डिमीन. मैं बोलता हूँ ये सब छोटी और बहुत ही नीची किस्म की राजनीति है. मैं कभी भी किसी को पर्सनल ट्रोल नहीं करता, और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर वेयर्स. डेफिनेटली जो हमारे इंडिया में जो रेमंड्स के जो कपड़े बनते हैं, जिसका कॉटन जो इंडिया में बनता है, मीन्स इट इज सो गुड क्वालिटी. हमें बाहर से कोई चीज लाने की आवश्यकता नहीं है. और जो वॉच है, ये वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट ही वेयर्स एंड व्हाट ही इज रिप्रेजेंटिंग अस एंड हाउ स्मार्ट एंड हाउ फिट ही इज लुकिंग. That is what I feel. I used to feel very proud. May I just point out one small thing? I thought you would do it, but I'll do it for you. क्या है? दारूवाला साहब, you know you are a very dear friend of mine, and I always stand by you in everything. We've got Dr. Pooja Mishra. Dr. Pooja Mishra, thank you very much, ma'am, for coming in and gracing us with your presence. Thank you very much, ma'am. नमस्कार. आपको भी पहली नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं. जय माता दी. But I'll tell you what. This is something which usually is not publicized. दारूवाला साहब, जो अभी आपने कहा ना, जो मोदी जी की ड्रेसेस होती हैं, स्पेशली मेड ड्रेसेस जो उनके लिए होती हैं, डिजाइनर ड्रेसेस जो होती हैं, दे आर ऑक्शन्ड एवरी ईयर. हर साल थोड़ा मेरा कमेंट सुन लेते हैं सर. हर साल उनकी नीलामी होती है, बजाज जी, और वो नीलामी से जो पैसा आता है वो अनाथ बच्चियों के लिए इस्तेमाल होता है. मैं आपके पास आता हूं संजय द्विवेदी जी. लेट दारूवाला साहब फिनिश. दारूवाला साहब, प्लीज फिनिश. गो अहेड सर.
या मैं कह रहा था द वे राजीव गांधी यूज्ड टू ड्रेस अप, Yes. इंदिरा गांधी यूज्ड टू ड्रेस अप, That's right. पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम के वो ड्रेस का नाम उनके पहनावे की वजह से हुआ, उनके शूज का नाम उनके पहनावे की वजह से हुआ। तो वी आर प्राउड, ये हमारी गर्दन ऊंची होनी चाहिए सर, ऊंची होना चाहिए, एंड वी शुड बी प्राउड द वे दिस पीपल कैरी, दे आवर ने सर। बहुत सारे लोग उनको आइडियलाइज करते हैं सर, और जब कोई किसी को आइडियलाइज करता है तो दे शुड रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन अ सर्टेन मैनर, दैट्स वेरी सिंपल। एंड आई दारूवाला साहब, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। बोले H1B वीजा का देखो, सऊदी पाक डील देखो, ट्रंप सीज फायर अभी भी चिल्ला रहा है, और दिस एंटायर जीएसटी का चीज को भूल जाओ, अब ये देखो कितना वीक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। नाउ हाउ डू यू सी कमेंट ऑफ राहुल गांधी कमिंग एट दिस टाइम व्हेन मोदी साहब ने जीएसटी 2 कर दिया है? सर जीएसटी जो कम किया वो बचत महोत्सव करके ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। जो बाजार में जल्लोष है सर, आप जाके देखिए सर, अमेजॉन जैसी कंपनी ने अपने सेल को एक हफ्ते से रोक दिया था, बोले कि 22 तारीख को जो इन्फ्लक्स आने वाला है, सारे प्लेटफॉर्म्स आप देखिए सर, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म जहां पर ये सब सामान ऑनलाइन बिकता है, सभी ने अपने सेल्स को सस्पेंड किया था। और ये जो हिसाब से जो एक महोत्सव, जो बचत, जो स्पेंडिंग पावर ये देश के अंदर है, ये आज से आपको देखने मिलेगा सर। मैं एक छोटा बिजनेस करता हूँ, रात में सेल सस्पेंड किए थे, आज सुबह में वो एक चीज 10 रुपए से कम हो गई। वो लेने के लिए जो हमारे दुकानों में कतार लगी है ना सर, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका आशीर्वाद मोदी जी को जाता है। ये तो शुरुआत है। उन्होंने कहा था when we reach the benchmark, जब हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, जब हमारा जो मेजर खर्चा है जैसा वो होगा, हम ये सारा इसका फायदा हम आम जनता को भेजेंगे, आम जनता को हम ट्रांसफर करेंगे। Let us have some patience and let us watch and see what Modi ji has in the pipeline for the citizens of this country. Sir, but I have a Sir, suggestion. But I have a question for you, sir. I do have a question for you. Modi ji has also said कि वो MSMEs को बहुत बढ़ावा देंगे, IT कंपनीज को बहुत बढ़ावा देंगे, बाकी सब लोगों को बहुत बढ़ावा देंगे। दारूवाला साहब, are you with us? Are you not with us? दारूवाला साहब, अरे सर कैमरे की तरफ देख लीजिए। दारूवाला साहब, Mr. Daruwala seems to be very busy elsewhere. Let me go across. सर जी सर 10 सेकंड। संजय द्विवेदी, भाई 10 सेकंड, आप 1 मिनट लीजिए सर, आप 10 मिनट लीजिए, आपका चैनल है, आपको कोई रोक सकता है क्या? बोलिए सर, द्विवेदी जी बोलिए बोलिए। सर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करता हूँ सर, जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती सर, राजा वगैरह जब होते थे, राजा महाराजा, तो वो अपने कपड़ों की नीलामी करके गरीबों में बांटते थे सर। जी आपने अभी कहा कि साहब वो जो पहनते हैं उसकी नीलामी करते जी। हैं, वो अनाथ बच्चों को जाता है पैसा। अनाथ तो लड़कियों, भैया कपड़े, अनाथ सादे कपड़े लड़कियों पहने, में, गांधी जी के स्टाइल के कपड़े पहने, और जो पैसा कपड़ों में लगा रहे हैं वो सीधे अनाथालय में देते हैं। क्या कितनी दुर्दशा करना चाहते हैं देश की? मतलब अपने उतरे कपड़ों को नीलामी करने के बाद जो अनाथ बच्चे हमारे हैं उनको दे रहे हैं सर। कितने शर्म की बात है ये। जिस देश में 80 करोड़ जनता को हम क्या दे रहे हैं? अन्न दे रहे हैं सर। राइट। सो आपका कमेंट आ गया सर। सब गरीबी So let's ask दारूवाला साहब, दारूवाला साहब, पार्टी एनडीए के नेता कहते हैं ना गरीबी ना भुखमरी देश जी, में, जी, द्विवेदी ना जी। हमारी महंगाई देश में है सर। जी, जी, मैं बिल्कुल। कहता हूँ इन्होंने एक बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तभी जीत आप के आए मुझे तीसरी बता बार। दीजिए, जीएसटी लागू 8 साल पहले हुई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आज उनका सब सुनिए, अपलिफ्ट मिडिल क्लास। Sir, I have to ask Daruwala sahab a question. Sir, you are requested for 10 seconds. I have given you 45 seconds, sir. Almost a minute. 1 second, sir. Daruwala sahab, I am coming back. Sir, I am coming back to you. Daruwala sahab, I know you have to go to another channel very shortly. Within 10 minutes, you have to go to another channel, and then you will come back. That's what you have said. Now, Daruwala sahab, I have to ask you this. This is very important. Sir, MSMEs को आप बढ़ावा देंगे, IT सेक्टर को भी आप और बढ़ावा दे रहे हैं। वो जब ट्रंप साहब ने वो H1B वीसा के ऊपर जो भी उन्होंने नया बाउंसर जो मारा है, उसका क्लैरिफिकेशन अभी आया यूएस गवर्नमेंट से वगैरह वगैरह वगैरह, बट ट्रस्ट हैज गॉन। सर, आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए,
यहां पर लोगों को बिजनेस करने के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं। सर जैसे ही किसी का बिजनेस चालू होता है आपकी ईडी वहां पहुंच जाती है, आपकी सीबीआई वहां पहुंच जाती है। इनकम टैक्स तो चलो ठीक है, आज की तारीख में इट हैज बीन मोर और लेस स्ट्रीमलाइन। सर आप बिजनेस किसी को करने नहीं देते। ऑल द स्मॉल बिजनेसेस, बेचारा पान वाला हो, दूध वाला हो, वो क्या है, वो नारियल पानी बेचने वाला हो, उन पे रेड हो जाता है सर बॉम्बे में। सर यू हैव टू कॉल ऑफ दीज एजेंसीज। दिस इज द प्रॉमिस दैट मिस्टर मोदी हैड मेड इन 2013। मुझे अभी तक याद है मोदी जी का अहमदाबाद का भाषण, उन्होंने कहा था सीबीआई का डर एक बार मुझे आने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और देन ही पॉइंटेड आउट कि मंडे को जो इंडस्ट्रियल से सीबीआई के ऑफिस में होता है, ट्यूसडे को ईडी के ऑफिस में होता है, वेडनेसडे को इनकम टैक्स के ऑफिस में होता है, थर्सडे को ईओडब्ल्यू के ऑफिस में होता है, फ्राइडे को एसएफआईओ के ऑफिस में होता है, सैटरडे और संडे को वो थोड़ा बहुत अपना काम कर पाता है, फिर दोबारा साइकिल कोई शुरू करता है। तो काम कब करेगा? ये मोदी जी ने कहा था सर। अब आप बोलें सर प्लीज, व्हेन विल दिस स्टॉप सर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो उनका सपना है, ऐसे कायदे और कानून, मैं जानता हूं 100 कायदे और कानून जो इररेलेवेंट थे, जिससे कोई भी बिजनेस को उसका कोई आवश्यकता नहीं थी। लाइसेंस राज को अगर खत्म किसने किया है तो मोदी जी ने किया है। मैं यहाँ पर काफी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस छोटा मोटा चलाता हूँ। मुझे मालूम है अननेसेसरी विंडोज में जाना, ये परमिशन को अप्लाई करो, उसको अप्लाई करो, बहुत सारे परमिशन को माननीय पंतप्रधान ने वेव आउट किया है। जो कायदे ब्रिटिश राज के थे, वो जमाने के थे, उसको मोदी जी ने कम किया। उसके बाद में अभी छोटे बिजनेसेस को ईडी बुलाती है, सीबीआई बुलाती है, ये तो आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मैं ये जानता हूं कि ईडी सीबीआई ये जो है, ये जो देशद्रोही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे, जो ब्लैक का व्हाइट कर रहे, इनको इस शाखाओं से डर लगना चाहिए। मैं कहता हूं आपको, मेरे को, द्विवेदी जी को, पूजा मैम को, हमको काहे का डर सर? ईडी सीबीआई का क्या मिलने वाला है? अब ढूंढो क्या टैक्स हम ईमानदारी से भरते, हम किसी से रिश्वत नहीं लेते। द्विवेदी जी इतना बड़ा बिजनेस चलाते, उनको क्या ये इतना बेखौफ होके बात करते, इनको कोई डर नहीं है। पूजा मिश्रा मैम ने आज उत्तर प्रदेश में रह के बुलडोजर बाबा के खिलाफ इतना आवाज उठाया, और जो भी हकीकत थी, जो भी उनके मन में थी, उन्होंने बेझिझक बोला। उनको काय का डर? उनको का बुलडोजर का डर है? ईडी सीबीआई? सर डर उसी को है जो गलत काम करता है। जिसको गलत काम नहीं है उसको कोई भी आवश्यकता डरने की नहीं है। कोई डर। द्विवेदी जी, आई कम टू यू। द्विवेदी जी, जीएसटी 2.0 मोदी साहब का कहना है ये गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट मैं पूरे देशवासियों को दे रहा हूं, मगर आप और संजय राउत जी इस चीज का मजाक उठा रहे हैं। बोले 5 बजे राष्ट्र संबोधन इसलिए मोदी जी ने किया बिकॉज रात को टीवी मैच देखना था पूरे बीजेपी के वर्कर्स को। इतने सीरियस चीज को आप मजाक में बदल रहे हो। आप देश हित में जो मोदी साहब कर रहे हो उसको नजरअंदाज कर रहे हो। द्विवेदी जी, सर रात में संबोधन किया, नोटबंदी हो गई सर। सुबह उठे, जो किसानों के 3 बिल थे जिसके लिए 700 किसानों का बलिदान हुआ, वो 3 बिल वापस हो गए। और 4-5 महीने इसी डिबेट में यही चैनलों में चलता रहा। नहीं साहब वो बिल बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जीएसटी 2 में अगर जो हटाया गया, जीवन रक्षक दवाओं पे जो हटाया गया, हम लोग तो 8 साल से मांग कर रहे हैं सर। हम लोग तो 8 साल से मांग कर रहे हैं, जो आप मोदी जी कह रहे हैं अपने मिडिल क्लास यूथ, तो मिडिल क्लास यूथ 8 साल पहले उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 8 साल पहले जब लगाया गया था कि जीवन रक्षक दवा पे लगा दिया, इंश्योरेंस में लगा दिया, तमाम ऐसे खाने वाले पदार्थों पे लगा दिया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे अब हटाया गया। तो कि 8 साल तक उनको याद ही नहीं आई। जी अच्छा प्रधानमंत्री भाई हमारे देश का, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री को। जो प्रधानमंत्री 8 साल बाद जिसकी आंख खुलती है और 700 किसानों की डेथ के बाद वो 3 बिल वापस होते हैं। और नोटबंदी में बता दिया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। कहाँ खत्म हुआ? कुछ हुआ? मैं यही कह रहा हूँ सर, जमीन में रह के अगर जो विदेशी कपड़े पहनने को अच्छे कपड़े पहनने, मैं नहीं मना करता हूँ। आप 10 लाख का लगाइए चश्मा, 50 लाख के कपड़े पहनिए, मैं नहीं मना करता हूँ। लेकिन उनको नीलाम करने के बाद अनाथ आश्रय में वो पैसा दान करना, ये तो क्या होगा? भिखमंगे हैं क्या अनाथ आश्रय में रहने वाले? भिखारी है क्या? अरे तो राजा महाराजाओं होता था सर, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। हमने पढ़ी किताबें पढ़ी है, देखा है हमने कि राजा महाराजा होते थे, उनकी चीजें नीलाम करते थे या दान दे देते थे, तो वो समय था सर। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र सर।
यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ युद्ध करके कोई नहीं जीतता है। यहाँ वोट चोरी करके आप जीत सकते हैं, लेकिन कितने दिन वोट चोरी करेंगे? जनता एक ना एक दिन। और नेपाल सिचुएशन क्या? आज आज आप मतलब महाराष्ट्र मोदी के जी लिए कुछ भी करें, हमने आपको नहीं बुरा ही कहा लगेगा कि किसानों को ऋण माफ, लोन माफ कर देंगे। किसने कहा था? एनडीए गवर्नमेंट ने कहा था, जी, कहा था। जिस समय उनकी गवर्नमेंट थी। अगर लोन माफ करने की बात की थी तो उनका लोन क्यों नहीं माफ हो रहा? अगर किसान लोग आत्महत्या लोन के लिए कर रहे हैं तो इसका हिसाब किसको लगेगा सर? ये क्या विपक्ष को लगेगा? विपक्ष तो मांग उठा रहा है। भाई आपने 10 गारंटियां दी थी, उसमें एक गारंटी ये भी थी किसानों को हम ऋण माफ करेंगे, हम नानी में 2100 रुपए देंगे। आपने कहा था हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, शिव भोजन थाली देंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, तमाम चीजें आपने कही। लेकिन क्या किसानों के ऋण माफ हुए महाराष्ट्र में? तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आप करें That's a very major point. अब द्विवेदी साहब, जो आपने अभी कहा है, एक मिनट द्विवेदी साहब, पॉइंट खत्म हो जाएगा नहीं तो वो उसके ऊपर रही है थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। जो आपने कहा है वो दैट्स अ वेरी वेरी मेजर पॉइंट। दारूवाला साहब इज ऑलरेडी लेफ्ट, ही न्यू आई वाज कमिंग टू हिम, दारूवाला साहब को मालूम था कि मैं उन्हीं के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, जो अभी द्विवेदी जी ने कहा दैट्स अ वेरी मेजर पॉइंट, स्पेशली इन महाराष्ट्र। यूपी में क्या हाल है उसके बारे में जरा आप बता दें। ऐसा है, महाराष्ट्र में ये सरकार आने के पहले मैनिफेस्टो में था, क्लियर कट था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। अभी तक माफ नहीं हुआ है मैम, अभी तक माफ नहीं हुआ है। मतलब ये क्या है? आइदर यू शुड नॉट प्रॉमिस, या तो आप सीधा बोल दीजिए भाई ऋण माफ नहीं करेंगे, रोल ओवर करेंगे, वर्कआउट करेंगे, आपके साथ बैठ करके कुछ ना कुछ करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन एक बार आपने प्रॉमिस कर दिया कि हम लोन माफ करेंगे एंड दे आर नॉट डूइंग इट। आई थिंक द सेम सिचुएशन अप्लाइज इन यूपी एज वेल। इजंट दैट ट्रू? डॉक्टर पूजा मिश्रा, बताएं जरा प्लीज। जी, आपको नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार और जय हैप्पी माता दी, नवरात्रि जय सभी को। माता दी जी। और जो आप कह रहे किसानों के ऋण माफ करने की जो वादा किया हुआ था, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, वो तो केंद्र सरकार ने भी किया था ना। जी। आय दोगुनी करने की वादा भी तो जो केंद्र सरकार ने भी किया किया था, हुआ किया था। था, और भुगतान कराने का भी वादा टाइमली ये सरकारों ने किया हुआ था, बिल्कुल जब इनको आने को था। और इनमें से कोई एक भी चीज अभी ग्राउंड पे इतने साल के बाद में नहीं जो है अवेलेबल है। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें, सेकंड गवर्नमेंट आ चुकी है, अब मैं बीजेपी कहूंगी, पहले एनडीए की थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सेकंड टाइम गवर्नमेंट है, केंद्र में थर्ड टाइम गवर्नमेंट है। और किसान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि किसानों के लिए उन्होंने काम कर लिया होगा। आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में पहले बोल रहे कि हम किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं, उसके बाद में जब वो डीएपी और यूरिया मांगने के लिए जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठी मारते हुए हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये किसान जो है यूरिया को स्टॉक कर रहे हैं। जिस किसान को जो है, जिसको आपने 50 किलो से घटा करके 45 किलो का कर दिया है यूरिया, एक बोरी यूरिया मिल जाए तो जाकर के अपने खेत में डाल ले, आप कह रहे वो स्टॉक कर लेगा। जब वो काला बाजार से 500 रुपए का यूरिया खरीद नहीं पा रहा है, वो स्टॉक कैसे करेगा? लाइन में लग करके सुबह से लेकर के शाम तक वो कुछ चाह रहे एक बोरी में यूरिया मिल जाए या डीएपी मिल जाए, हम जाकर के अपना काम करें। वहां लाठीचार्ज कराया आपने, और फिर आप कह रहे कि हम इनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जबकि आप इससे पहले कह चुके थे हम खाते में पैसे पहुंचा रहे हैं। अभी मेरे पास जस्ट अभी आपको मैंने शो को ज्वाइन किया तो मेरे पास में एक जो है मैसेज आया, तो वो मैं बोलना चाह रही थी। मैसेज था, मेरा जूनियर उसने मैसेज किया कि जीएसटी लगाना भी मास्टर स्ट्रोक और घटाना भी गवर्नमेंट के लिए, और किसान बिल लाना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी, ट्रम्प की दोस्ती भी मास्टर स्ट्रोक और उसकी नाराजगी भी, पाकिस्तान पर हमला भी मास्टर स्ट्रोक और सीज फायर भी, 2000 का नोट लाना भी मास्टर स्ट्रोक और हटाना भी मास्टर स्ट्रोक, चीन का बॉयकॉट भी मास्टर स्ट्रोक और फिर उससे दोस्ती की कोशिश भी मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक और उस पर चुप्पी भी मास्टर स्ट्रोक। आखिरी लाइन जो लिखी है, तौहीने मास्टर स्ट्रोक की कोई और मिसाल बची हो तो आप भी लिख लीजिए। ये मैं बिल्कुल नाम लूंगी, डीएल जो है जूनियर है, हमारे यहाँ पीएचडी कर रहा है, उसने अभी जस्ट मुझे ये भेजा, तो अभी हम लोग लिखेंगे इस पे और ऐड करेंगे। आंकड़ा दिया है, फैक्ट है, योगी जी ने आंकड़ा दिया है। योगी जी कह रहे 2017 2017 से लेके आज के इकोनॉमी, यूपी के इकोनॉमी 3 गुना बढ़ चुका है। जीडीपी हैज ट्रिपल जीडीपी हो गया, पर कैपिटल ट्रिपल हो चुका है। ये योगी जी का कहना है ना, और आंकड़े भी दिया है, इनफैक्ट 2.36 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन, 45। तो आप आंकड़ों पे तो जा ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश के, आपको पता नहीं होगा। आउट ऑफ 46 वैकेंसीज 56 जो है भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में, आपको जानकारी है? योगी जी के ट्रिपल हो गया इकनॉमी, जानकारी है
नहीं Economy प्रदीप जी, is आप tripled. यूनिक चीज जानिए उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे 46 भर्तियां निकली हुई थी और 46 के अगेन में 56 भर्तियां हुई हैं। 10 विधायक सांसद के रिश्तेदार मिले हैं जो फर्जी जो है ज्वाइनिंग लेटर ले जाकर के स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे थे, शिक्षक की नौकरी कर रहे थे इंटर कॉलेजेस में, और उसके साथ में पैरेलली उनका बिल्कुल कारवां चल रहा था। 46 हमें लगा कि हो सकता है कि किसी और के नाम पे गए होंगे, पता चला नहीं, वो 46 ही वैकेंसी थी, ये 10 लोग और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए हुए हैं। और जहां तक बात रही इसकी, जो कह रहे कि इकोनॉमी दिखा रहे हैं, आंकड़ों से दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा खेल लेते हैं। हम कहते हैं आंकड़े पहुंच जाए 100 गुना बढ़ जाए, 1000 गुना बढ़ जाए, आपके कॉपियों में बढ़ता चला जाए, तब तक क्या फायदा जब तक कि उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार हो, उत्तर प्रदेश के युवा को आप लाठी चार्ज कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसान को आप लाठी चार्ज कर रहे हो। अभी वो चले गए जो है भाजपा के प्रवक्ता जो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं जी, वापस आ रहे हैं वो जी। हाँ बोलिए। हाँ 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 वो कह रहे थे कि पूजा मिश्रा जी ने सब जो है इतना बोला है, पूछे बुलडोजर बाबा के अगेंस्ट में, क्या उनके अगेंस्ट में कुछ हुआ क्या? मैं आज ही शाम को 3 बजे जाकर के यहाँ के कमिश्नर को एप्लीकेशन दी हुई है। मुझे पिछले 1 महीने से लगातार बहुत ज्यादा जो है धमकी वाले कॉल आ रहे थे। 1 हफ्ते से मैं अवॉइड करते करते बढ़ गया, मैंने कहा इतना भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, अब जाकर के दे देना चाहिए कॉल। हो सकता है कि कोई जो है सरकार को ही जो कहते नहीं बदनाम करने के लिए कर रहा हो कि मैं इनका गवर्नर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये है सच्चाई। अब इन्होंने कह दिया, कोइंसिडेंस है कि मैंने आज ही जाकर के पत्राचार किया। हमने पत्राचार भी इसलिए किया ताकि 1090 के साथ जो कंप्लेंट किया था मैंने 2-3 महीने पहले, उस पे जो है आगे और बढ़ता जाए, क्यों रुका नहीं है। लेकिन अब वास्तविकता में ये बताइए, वास्तविकता में, क्योंकि अभी क्या है, हर चैनल के ऊपर, हर जितने भी कॉर्पोरेट चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, उन पे एक, द्विवेदी जी सुनने वाली बात है क्योंकि आप भी लखनऊ से हैं, क्या है कि उन पे एक प्रोमो चल रहा है, प्रमोशनल चल रहा है, विच इज अबाउट 5 मिनट्स ऑफ जनाब योगी आदित्यनाथ जी, जिसमें वो बता रहे हैं किस प्रकार ब्राह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री शुरू हो गई है, किस प्रकार कानपुर के अंदर जो आर्टिलरी शेल्स हैं, हमारी जो FH-155 मिलीमीटर 77B जो हमारी नई आर्टिलरी गन्स है, विच आर रिप्लेसिंग दी बोफोर्स गन्स, और उनके शेल्स बनने शुरू हो गए हैं। AK-203 जो हमारी राइफल्स जो हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स विच आर रिप्लेसिंग दी इंसास राइफल्स, वो भी बननी शुरू हो गई हैं। और डिफेंस कॉरिडोर में तकरीबन बाय द एंड ऑफ दिसंबर कोई 17 और यूनिट शुरू हो जाएंगे, और अभी तक 12 यूनिट काम कर रहे हैं। इज दैट ट्रू मैम? एंड लेकिन हाँ, उसमें एक क्रिटिसिज्म जरूर आया है विच केम फ्रॉम जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप ही के नेता हैं अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा कि जो यूनिट शुरू हुआ यार, वहां पे किसी उत्तर प्रदेश के बच्चे को तो वहां नौकरी नहीं मिली, बाहर के बच्चे आकर के वहां काम कर रहे हैं। अब आप बोले मैम, ये फैक्ट है, अब आप बताएं मैम। ये फैक्ट है कि जो यूनिट चालू, और ये यूनिट ही नहीं, अगर आपको उत्तर प्रदेश में काम करना हो तो हो सकता है कि जो है आपको मिल सकता है टेंडर, पर पूजा मिश्रा को नहीं मिलेगा क्योंकि डॉक्टर पूजा मिश्रा उत्तर प्रदेश से है। आप अगर जो है आ रहे हो, गुजरात से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो, मुझे पता नहीं कौन सा करप्शन ऐसा चल रहा है कि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अगर जो है दे देंगे। आपने कैग की रिपोर्ट देखी होगी ना, उससे भी ये बात बिल्कुल क्लियर हुआ है कि कैग की रिपोर्ट से भी क्लियर है कि इन्होंने टेंडर्स जो है जहाँ पे सिंगल टेंडर्स आए हैं और एक ही टेंडर भरने वाला आदमी रहा, उसको भी जाकर के दे दिया हुआ है। तो इनको ये डर लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो है जो ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं उनको दे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को, तो कहीं हमारा पोल न खुल जाए। बाहर वाले क्या है, आएंगे, काम करेंगे, बोरिया बिस्तर बांधेंगे, चले जाएंगे। वो खौफजदा भी रहेंगे कि अगर हम काम करके इनके बारे में कुछ बोल देंगे, गलत बोल देंगे या बता देंगे कि हमने कितना परसेंटेज दिया होगा। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के तो विधायक बिल्कुल खुले मंच से कहते हैं भाजपा के कि हम तो लेते हैं 10% या 20% कह रहे थे, गलत कह रहे थे, 20% कह रहे थे, 40% लेते हैं वो लोग, कि हम तो 20% लेते हैं, तब हमारा कुछ गुजारा चल भी जाता है कार्यकर्ताओं को, तो वो भी नहीं मिलता है। तो ये पता नहीं कौन सा परसेंटेज फिक्स कर रखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश को लोगों के सामने न लाने के लिए उनके जो अधिकार है उनको उससे डिप्राइव करते चली जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये आप बात सही करके यूनिट जो चला रहे हैं, ये वही बता ही सकते हैं जो साइंटिफिक काम जो चल रहा है, साइंस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, उसी को बता सकते हैं जो इनको करना चाहिए। डॉक्टर पूजा मिश्रा, एक मिस्ट्री सॉल्व कीजिए प्लीज। मैं खोज के रिसर्च करके खुद रिसर्च करके मैं पागल हो गया हूं, ये कैसे हो गया कि मिरेकल कैसे हो सकता है मैम? जीडीपी के हिसाब से एनुअल एक्चुअल जीडीपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ कोर्स विल बी हायर because if your growth rate is very low this year and if you use this as the base year, then your growth rate will be very high next year if there are lots and lots of industries which coming. I am not talking about rate, I am talking about actual GDP. Uttar Pradesh is number 2 after Maharashtra.
उत्तर प्रदेश जीडीपी के हिसाब से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, एनुअल जीडीपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश इज नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2 इज उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट तमिलनाडु एंड देन गुजरात। हाउ ये कैसे हो गया? हाउ हैज दिस मिरेकल बीन परफॉर्म्ड? एंड द क्रेडिट योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि बीमारू स्टेट से नंबर 2 स्टेट लाने के लिए हमें पूरा गिव द क्रेडिट टू द बीजेपी गवर्नमेंट एंड योगी गवर्नमेंट। डॉक्टर पूजा मैं मिश्रा, अभी please. इस पे जो है 2-3 दिन पहले मैं भी रिसर्च कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जीडीपी पे किसका कहाँ से कितना हिस्सा आ रहा है। तो मेरा इस सब खासकर मैं लीकर पे बहुत रिसर्च चल रहा है, क्योंकि लीकर को मैं रोज जब भी इंस्टीट्यूट जा रही हूँ तो मुझे रोज बाएं हाथ पे दिखता है, मेरे कॉलेज के 10 थर्ड दरवाजे के जस्ट अपोजिट। तो वो दिखता है, मुझे पहले लगता था कि रात को खुलता है, मैं उसे 10 बजे खुला हुआ देखती हूँ। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा तो दिन में खुल रखा हुआ है? तो बोला कि नहीं, इसकी टाइमिंग है 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, तो तभी तो खुलेगी ये। तो आप देखेंगे आउट ऑफ जीडीपी का 25%, जिसको इंडिया में 2017 में जब जो है जीएसटी लाई जा रही थी तो सरकार कह रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर होगा ओवरऑल जीडीपी में वो 25% होगा। उत्तर प्रदेश में जीडीपी में जो शेयर है वो जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू का शेयर है, रेवेन्यू का जो शेयर जा रहा है वो 22% या 25% इन बिटवीन दैट है, वो मैक्सिमम वहां से चला आ रहा है। और कहाँ से ग्रोथ हो रही है ये आंकड़े बता सकते हैं, पर ग्राउंड पे इस तरीके की ग्रोथ नहीं है। वो विषय हम लोग पूजा जी, ODOB, one district, one product. एक बात और कहना चाह रही थी प्रदीप जी, मैं एक बात और कहना चाह रही थी। बिफोर कमिंग टू दिस डिबेट आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली and we were having conflict on language or something like that. We were just joking that you guys hate us, and he said that no, you guys hate us, we are not against you, we are against the government who is imposing Hindi forcefully. And at that time he said we said that I was just joking, I said we will boycott Maharashtra and we will not go to Maharashtra for work purposes. And he was like कि अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आप लोग महाराष्ट्र नहीं आएंगे तो महाराष्ट्र का काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से इतनी बार इतने प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश तरक्की क्यों नहीं कर पाया महाराष्ट्र जैसे, कि महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नहीं हुए। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का जीडीपी के जस्ट बाद में उत्तर प्रदेश की जीडीपी है। तो आप देखिए कि अगर जीडीपी के जस्ट सेकंड टाइम पे जीडीपी है तो उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश प्रोग्रेसिव ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए ना। अगर महाराष्ट्र की जो है तो वो दिखती है कि हाँ प्रोग्रेसिव है, योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं दिखता है। तो योगी जी स्कीम्स बता रहे, गलत है चीजें, स्कीम्स बता रहे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, योगी जी स्कीम्स बता रहे, वोकल फॉर लोकल, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लेके आ रहा हूं वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्किल डेवलपमेंट, लोकल स्किल डेवलपमेंट, आर्टिसंस, उनको हमें ऊपर उठाना है, मेक इन इंडिया। तो एक एक स्कीम्स भी बता रहे। इस स्कीम्स के माध्यम से मैं पूरा अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। और शक्ति, उन्होंने कहा शक्ति फाइट आउट ओ वुमन एम्पावरमेंट, शक्ति फाइट आउट हो। क्या आपको लगता नहीं आइडियाज तो दिख ही रहे, आइडियाज दिख रहे, हर सेगमेंट के लिए आइडियाज है। नहीं, 357 डेज जो है ये शक्ति की बात नहीं कर रहे होते। अब नवरात्र चालू हो गया है तो इन्होंने जो है मीटिंग शुरू कर दी है ऑनलाइन मीटिंग शुरू करने के बाद में ये कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करते हैं कि हमें जो है 4 लड़कियां चाहिए होंगी जो बैठ करके वहां पे बैठे और फोटो पिक्चर्स में आ जाए कि हाँ ये सशक्त हो रही है। वो सशक्त हैं, जबकि उन्होंने सारे एग्जाम क्वालिफाई करके तब वो इंस्टीट्यूट तक पहुंची हुई है, तब वर्क कर रही हैं। तो उनको दिखा रहे कि हम शक्ति मिशन से इनको सशक्त कर रहे हैं, जो सशक्त रही है पिछले सरकारों से सशक्त रही है। आप सशक्त आपने क्या किया हुआ उसकी बात कर ली जाए। अभी जो है आपने कहा कि वो स्किल डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं, वो वोकल फॉर लोकल लेकर के आ रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इनसे पूछिएगा कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो जो कन्नौज है वहाँ पे इत्र के लिए जो है हमने टाई अप किया हुआ था, हमें उसको पूरा इत्र मंडी बनाना था, इत्र उसके बहुत पॉपुलर थे, उसके लिए इन्होंने क्या काम किया? वो प्रोजेक्ट होल्ड पे क्यों रखा हुआ है? प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी बनाई जा रही थी, वो प्रोजेक्ट होल्ड पे रख दिया क्योंकि इनकी सरकार बन गई हुई। और यहीं पे मिर्जापुर है, मिर्जापुर का कालीन और भदोही का कालीन कहाँ पे हुआ? रामपुर की चाकू कहाँ चली गई? क्यों नहीं दिख रहे हैं ये? और अगर इनसे पूछा जाए कि जो चमड़े का व्यापार होता था वो चमड़े का व्यापार में डिक्लाइन क्यों हुआ है? मेजर डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो मेजर डिक्लाइन हो रहे तो आप कैसे वोकल्स फॉर लोकल कह रहे हैं? और देश की जीडीपी में हमें पता है कि 2017 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हम बिल्कुल बुरी तरह से गिरे हुए हैं। देश की जीडीपी में 2017 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर होता था 17%, उसके बाद में वो 2024 में डिक्लाइन करके पहुंचा 14%, और मुझे लगता है कि अभी वो डिक्लाइन करके पहुंच गया हुआ 12%। तो हम ग्रोथ कर कहाँ रहे हैं?
ना तो हम मेक इन इंडिया में मेड इन इंडिया बात नहीं कर पा रहे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी स्वदेशी बात कर रहे हैं। भाई स्वदेशी होगा कैसे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डिक्लाइन करता चले जा रहे हैं। हम बाहर से लेकर के आएंगे सामान और यहाँ पे अरेंज करके कहेंगे स्वदेशी हो जा रहा है। आपको भी पता है प्रदीप जी कि पिछले 1 साल में चाइना का जो इंपोर्ट इंडिया में जंप किया है वो 25% जंप किया हुआ है और हम लगभग पहुंच गए हुए 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट पे। तो ये तो मैं कहूंगी कि जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट रन कर रही होती है हिट एंड ट्रायल मेथड पे। हमारे जो है रिसर्च में जनरली होता है कि वेयर वी डोंट नो द रिजल्ट वी गो फॉर द हिट एंड ट्रायल मेथड कि चलो करते लगाते रिएक्शन देखेंगे कुछ रिजल्ट आएगा तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो वही इन्होंने किया, जीएसटी लगाते हैं, रिजल्ट आएगा, फॉल आउट होगा तो मैनेज किया जाएगा। नोटबंदी करते हैं, जब फॉल आउट होगा तो मैनेज किया जाएगा। कोविड में लॉकडाउन करते हैं, जब फॉल आउट होगा तो मैनेज किया जाएगा। इसी तरीके से फेल करते चले जा रहे हैं। संजय द्विवेदी जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो अब जबरदस्त हर जगह पे प्रोग्रेस चल रही है, विकास चल रहा है हर जगह पे, हर जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, लोगों की नौकरियां लग रही हैं, आपका जीडीपी नंबर 2 हो गया है पूरे हिंदुस्तान में सर। आपने तो तमिलनाडु को ओवरटेक कर लिया सर, गुजरात को ओवरटेक कर लिया, क्या बात कर रहे हैं। और अगले साल तक कोई में हैरानगी नहीं होगी कि आप महाराष्ट्र को भी ओवरटेक कर लेंगे। तो मतलब यूपी से जो अभी अभी पूजा मिश्रा जी बोल रही थी कि हो सकता है कि यूपी से कोई काम ही ना करने को आए यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तो ठप हो जाएगा सर हमारा। यूपी की लेबर अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो महाराष्ट्र चलेगा कैसे? ये साजिश है सर आपकी। जी बोलिए, आप लोगों की साजिश है ये, बोलिए। मैंने कहा कहने वाली बातें सर हैं जी। आप कागजों में कुछ भी दिखा लीजिए कि हमारे शौचालय 50 करोड़ बन गए हैं, गरीबी रेखा से हमने सबको हटा दिया, सड़कें हमारे सब बन गई। देखिए सरकारें किस लिए चुनी जाती है? सरकारें चुनने जो जनता सरकार चुनती है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो देश की जनता की भलाई करें, गरीबों की भलाई करें, मध्यम वर्गीयों की भलाई करें, अपने यार मित्रों की भलाई करें, मतलब जिसकी भलाई करने के लिए चुनी जाती है। लेकिन आज देश में जो सरकारें चल रही हैं, आप या कांग्रेस का था या दूसरी पार्टियों सरकारें सब 65 साल रही हैं, क्या उन्होंने सुई से लेके हवाई जहाज तक नहीं बनवाए? क्या आयुर्वेद संस्थान उन्होंने नहीं लगवाए? क्या उन्होंने IIT नहीं खुलवाई? क्या उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई? क्या रेलवे जो हमारा रेलवे मार्ग है, पटरियां बिछती है, क्या उनका विस्तार नहीं किया गया? अगर आज आप बना के और दूसरी बात बताते रियल एस्टेट में, मैं रियल एस्टेट की कहानी बता दूं आपको। अभी पूजा मिश्रा ने बताया कि जो भर्तियां हुई हैं, अखिलेश यादव जी ने बताया, वो भर्तियां बाहर से हुई हैं, उत्तर प्रदेश से कोई आदमी भर्ती नहीं है। तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश कहाँ खत्म हो जाएगी सर? जब आप बात कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी कहाँ खत्म हो जाएगी? उत्तर प्रदेश से जो बेचारे युवा बेरोजगार हैं उनको तो महाराष्ट्र जाना ही पड़ेगा या दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा अपना रोजगार ढूंढने के लिए। अभी जो मेडिकल कॉलेज बने हैं प्रधानमंत्री के नाम वाले, आप उसमें उठा के लिस्ट देख लीजिए। 90% मेडिकल कॉलेज का जो ठेका दिया गया है वो ठेका दिया गया गुजरात की ठेकेदारों को। तो क्या उत्तर प्रदेश में ठेकेदार उपस्थित नहीं है कि जो ठेके ले सकते थे, मेडिकल कॉलेज बनवा सकते थे? लेकिन मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कहना करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनेगा 2049 में। अब 2025 चल रही, अब 2049 तक जो है हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें। आप बताइए कौन सी ऐसी चीज लगा दी गई है अभी तक जो आप लोग भी देखते हैं? आपने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया वो गरीबी और बेरोजगारी इस्तेमाल किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गवर्नमेंट गरीबी और बेरोजगारी को नहीं मानती है। आज आप कुछ भी कर लें देश में, चाहे कितनों बड़ा आप इकोनॉमी बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन देश जो स्थितियां देश ही हैं, चाहे किसानों की स्थिति हो, ये आपने वादे किए थे, ये विपक्ष ने वादे नहीं किया था कि हम आज दोगुनी कर देंगे। किसानों के जो बिल आप लाए वो आपने क्यों वापस लिए? अभी महाराष्ट्र में 1 से 5 तक हिंदी पढ़ाने की जो बात कही जा रही थी उसको क्यों वापस ले लिया गया? देखिए ये विवादित बयान देके, विवादित काम करके सरकार चलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये बोलने में अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि पहले अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बोलने में अच्छे थे, माननीय बाला साहब ठाकरे बोलने में थे, अब माननीय प्रधानमंत्री वो कोई मशीन लगा के अपना बोलते हैं सर। तो बोलने से नहीं होता, देश चलता है। तो आपके मुताबिक एक बात कही तो सर यहाँ से भेजते हैं और 80% पहुंचता है। तो द्विवेदी जी बदली नहीं, चलिए वो तो पुरानी बात हो गई ना सर, वही है सर। द्विवेदी जी अभी की बात करें, 1 सेकंड सर, एक सेकंड। आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में
सिर्फ आंकड़ों का खेल हो रहा है आपके मुताबिक, मतलब वास्तविकता में यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सामने लिस्ट है उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया, रोड्स इतनी बन गई, रिवरीन ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गई है, न जाने और क्या 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 कुछ हो गया है, वो पूरी की पूरी लिस्ट दी है जिसकी वजह से जीडीपी आपका बढ़ा है। तो आपके मुताबिक ये सब कुछ नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है कौन बनाता है सर, सड़कें नहीं बनी है आपके मुताबिक, बिजलीकरण नहीं हुआ है, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको मैं टोक रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए 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 सड़कें नहीं बनी थी क्या? सर बोलिए। नहीं, समाजवादी सरकार जब थी तो क्या सड़कें नहीं बनी थी क्या? सर अभी एक समाजवादी पार्टी नहीं है ना सर, योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, तो इसलिए उन्हीं की बात हो रही है ना। इनका काम नहीं है। मेट्रो शुरू हुआ था लखनऊ में, जो मेट्रो बना है, मेट्रो लाइन बिछी है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने शुरू नहीं की थी क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी हार गई ना सर, अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई ना 2 बार। नहीं, मैं कहता रहा हूँ आपसे, तो इसलिए अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सर, अखिलेश यादव जी द्वारा शुरू की गई। सर मैं आपसे कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बात जवाब दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी क्लेम कर रहे हैं, कुछ उन्होंने क्लेम किया है कि भाई देखिए ये डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, इसमें इतनी फैक्ट्रीज लग गई हैं, इसमें इतने एम्प्लॉयमेंट हो गई है, ये हो गई। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये यूपी की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहते हैं भारत की तो है, ये लोग क्या भारत के नहीं है? क्या यूपी के लोग जो महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, त्रिवेदी जी आप बताइए। सर मैं अगर उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट हो जाए, अगर बेरोजगार ना रहे उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में क्या करेंगे जाके? जो महाराष्ट्र में जाता है हमारे प्रदेश का व्यक्ति, कितने कष्ट झेलता है वो। मैं तो महाराष्ट्र जाता रहता हूँ, तो जो मुझे पता है किस तरह से रहते हैं, किस तरह कष्ट होता है उनको। तो क्या कष्ट उनको, अगर वो यहाँ रहे प्रदेश में, अपने जिले में रहे, जिले में कोई रोजगार मिल जाए, तो घर के रहने में आराम से नौकरी करेंगे और घर में अपने माता पिता के साथ रहेंगे, राहुल गांधी जी बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों के द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी, योगी जी का ये कहना है कि साहब हम जो चीजें लगा रहे हैं वो बाहरी लोगों के लिए लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र जाए या पश्चिम बंगाल जाए या बिहार जाए, तो ये भैया किस तरह मुख्यमंत्री वाली बात हुई? द्विवेदी, संजय द्विवेदी जी, जो राहुल गांधी जी ने जो कहा वोट चोरी के ऊपर, कि जिस प्रकार से चुनाव का चौकीदार इलेक्शन कमिश्नर को जो आरोप लगा दिया राहुल गांधी जी ने कि चुनाव का चौकीदार देखता रहा कि चोर वोट चोरी होता रहा और वोट चोरों को बचाता रहा, ये राहुल जी का स्लोगन था। और यूबीटी उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत महाराष्ट्र में कह रहे कि 90% महागठबंधन के लोग जो एमएलए हैं वो रिगिंग, वोट चोरी से जीत के आए हैं। क्या ये इतना बड़ा एलिगेशन करना ठीक है? ये मानते हैं कि जबरदस्त स्वीप हुआ जिस प्रकार से महागठबंधन, बोलिए। चुनाव का चौकीदार पार्टियों के नाम दे देता है, पार्टियों के चुनाव चिन्ह दे देता है, एक का नहीं, माननीय शरद पवार पार्टी का क्या चुनाव के पास ये अधिकार था क्या? आज 75 साल देश को आजाद हो गए, 75 सालों में पार्टियां कितनी टूटी होंगी? चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे किसी और पार्टी की बात करें, पार्टियां टूटी, लेकिन पार्टी का नाम विधायकों के आधार पर। तो चुनाव में जो संविधान बनता है उसका क्या मतलब है? तो क्या चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करा सकता है? वो खेल देख नहीं रहा है? क्या उसको पता नहीं आंकड़े? क्या उनको आंकड़े नहीं पता है? जब इतना बड़ा कांड हो गया देश में, इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरी पार्टी चली गई, चुनाव चिन्ह चला गया, तो ये तो छोटी मोटी चोरियां, नाम भी चला। इन चोरियों तो बात ही नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग से। लेकिन द्विवेदी जी आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तैयार है पूजा मिश्रा जी। मैं प्रवक्ता बन के भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टेटमेंट दूंगा। देखिए द्विवेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ना आज की डेट में। द्विवेदी जी आपने सिर्फ कांग्रेस की बात करी, चलिए कांग्रेस तो 2 फाड़ हुई, 5 बार 6 बार 10 बार, कितनी बार हुई किसी को याद भी नहीं है। जो भी नया फैक्शन कांग्रेस का बना उसने अपना नया सिंबल चूज किया। जैसे आपको याद होगा पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी, फिर गाय और बछड़ा हुआ करता था, फिर उसके बाद हाथ आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इट्स अ वेरी टेलिंग एग्जांपल, बिकॉज समाजवादी पार्टी वाज पार्ट ऑफ इट, जो बाद में समाजवादी पार्टी बनी। सर जनता पार्टी जब बनी उसका सिंबल हलदार था उसका सिंबल, और जनता पार्टी जो है कोई 11 के 12 टुकड़ों में बटी। हलदार सिंबल जो था
आखिरकार वो सिर्फ एक शख्स के पास बचा, वन मेंबर पार्टी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वो जनता पार्टी के मेंबर आखिर तक रहे, देन ही गेव अप दैट सिंबल एंड जॉइन द बीजेपी। तो सिंबल कभी किसी और को अलॉट नहीं हुआ था सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर पूजा मिश्रा, डोंट यू थिंक द इलेक्शन कमीशन हैज बीन वेरी स्ट्रेंज ओवर हियर? थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा। मैंने बोलिए। सिंबल की बात की, पार्टी के नाम की बात की। पार्टी के नाम ही चेंज हो गया ना। सिंधे के पास पहुंच गए शिवसेना, और अजीत दादा पवार जो चक्की पीस रहे थे उनके पास पहुंच गए शरद पवार की एनसीपी। चुनाव Very चिन्ह strange. पहुंच गया था। मगर मैं ये बात कह रहा हूँ। मगर जस्टिफाई भी हो गया था ना द्विवेदी जी, हर स्टेज में हर जुडिशियल अथॉरिटी ने उसको जस्टिफाई किया था। ऑर्डर पास हुआ, स्पीकर ने ऑर्डर पास किया, आगे जाके हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह उसको माना गया। मैं टोक रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे ने जो व्हीप जारी किया था वो मान्य है, लेकिन स्पीकर ना माने, प्रधानमंत्री ना माने और दूसरे ना माने, तो इसलिए इसके लिए प्रजातंत्र हम लोग क्या कर सकते हैं? जुडिशरी क्या कर सकती है सर? जुडिशरी की भी अपनी एक लिमिट है, संविधान के तहत उनको भी लिमिट में रखा सर, गया पूरी बात बताइए कि वो ना। स्पीकर के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप पूरे इंस्टीट्यूशन, जो बीजेपी कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन करप्ट है, जुडिशरी भी करप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करप्ट है, पॉलिटिक्स, तो हर सेटअप अगर करप्ट हो तो देश चलेगा कैसे? आप हर सर, आप ही ने भी कहा था, अभी बजाज जी ने कहा था सीबीआई ईडी छापे मार रही है गरीबों के, तो आप ही तो कह रहे हैं ना। हम तो आपकी बात का सब जवाब दे रहे हैं बहुत। सर मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। जस्टिस गवाई ने मैंने बोला, आपके मुंह से सर सुना। जी चीफ जस्टिस गवाई ने बोला, मैंने उनको कोट किया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि दारूवाला साहब थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। जस्टिस गवाई ने ये कहा ईडी को, डोंट मेक मी ओपन माय माउथ, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आपने महाराष्ट्र में क्या किया है मुझे मालूम है, आप प्यादे मत बनिए शतरंज की चाल में। दिस इज व्हाट ही सेड, बाय द वे, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। बट मैं सहमत हूं बजाज साहब से जो बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस सिर्फ ऑब्जर्वेशन देते हैं मगर ऑर्डर पास नहीं करते। ऑर्डर पास नहीं करते। ऑर्डर में ये सब नहीं लेता, ऑर्डर में कुछ भी नहीं होता। ऑब्जर्वेशन में कोर्ट में सब कुछ बोलते हैं, आप गलत कर रहे हो, आप ये होगा, हम किस बिल बैठे, हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ऑर्डर में कुछ और होता है। और प्रदीप जी, मेरा और आपका ना जाने कितनी मर्तबा इस पे डिस्कशन हुआ है। पूजा मिश्रा जी, संजय द्विवेदी जी, सुनने वाली बात है। पूजा मिश्रा जी सुनिए, कैन यू हियर मी मैम? कैन यू हियर मी? यस आई कैन। यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, जब आपसी डिस्कशन में, ओरल ऑब्जर्वेशंस में कोई भी कोर्ट किसी के भी खिलाफ, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोल रहा है, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड 99% ऑफ द टाइम ऑर्डर विल बी इन फेवर of that very organization that has been condemned during the observations. 100%। जिसके खिलाफ बोल रहे हैं ये क्या है, बकवास है ये, लेकिन जब ऑर्डर आता है उन्हीं के फेवर में आता है। ये क्या है? I am shocked at this. I mean, I've been around for a long time as a journalist. I have never seen this before. आप ऑब्जर्वेशंस कुछ दे रहे हैं, ऑर्डर कुछ दे रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया नार्को टेररिज्म के खिलाफ, नारकोटिक्स, उसके द्वारा पैदा हुआ इलीगल पैसा और उसका मनी लॉन्ड्रिंग, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। आज वो कहां इस्तेमाल हो रहा है आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है। एनीबडी हु अपोजेस यू, बूम, दैट्स इट, खत्म। मतलब ये क्या है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई वांट टू नो फ्रॉम यू पूजा मिश्रा जी। चलिए, जहां तक उद्धव ठाकरे शिवसेना का प्रश्न है, आज की तारीख में उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, उनके पास इतना वर्चस्व नहीं है जैसे एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो वर्चस्व है। योर इंपॉर्टेंस इज ह्यूज, यू वन 34 सीट्स। इनफैक्ट अगर मान लीजिए थिंग्स हैड बीन बेटर और थिंग्स हैड बीन फेयर, यू वुड हैव प्रोबब्ली वन 43 सीट्स। 43 सीटों का आंकड़ा था हमारे पास कि आपकी 43 सीट्स आएंगी, पर फिर भी 34 सीट्स इज ह्यूज। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस का गैर इस्तेमाल हो रहा है, जो सबको मालूम है, उस विषय के बारे में क्या समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं सकती? सड़क पे नहीं आ सकते आप लोग, कुछ कर नहीं सकते क्या? क्या है व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू मैम? पूजा मिश्रा जी। राजीव जी, हमें जो है प्रिवेंट कुछ नहीं कर रहा है, हम मुद्दों को लेकर के सड़क। वी सीम टू हैव लॉस्ट पूजा जी। राजीव जी, आपको मेरी आवाज अब आ नहीं रही है, अब आई मैम, अब आई वापस आई। जी। जरा दोबारा बोलिए मैम, आप बोल रहे थे मुद्दों को लेकर हाँ। आप सड़क पे। जी हाँ, बिल्कुल, हम मुद्दों को लेकर के सड़क पे हैं। तो
है ना कि जब आप कह रहे हैं ना कि ईडी, ये आपने मुझे बताया कि ईडी का गठन क्यों हुआ था, इसको मैंने स्टडी किया था, मुझे भी जो है रिसेंटली पता चला कि ईडी एक्चुअली क्यों, ईडी का जो है फॉर्मेशन हुआ था। तो हम इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, उनकी समस्याएं डिफरेंट है। हम इसको, हमसे इलेक्शन कमीशन को लेकर के अगेंस्ट में आए, हम कफन लेकर के चले गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता थी ना, उनके वोट को जो है हनन हो रहा था, उनके साथ में बदतमीजी की हुई थी बाई इलेक्शन में, उनको जो है गन पॉइंट दिखाए गए हुए थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए हुए थे, उनको दौड़ाया गया हुआ था। जो उत्तर प्रदेश की जनता है, हमारे लिए प्रायोरिटी ये है। हमने कई बार बोला कि हमको जो है अडानी अंबानी पे बात नहीं करना। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था डिबेट, तो बात चल रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी के क्लोथिंग पे, हमें उस पर ही बात नहीं करता। हम कहते देश के प्रधानमंत्री, वो पहने करोड़ों का क्लोथ पहने, वो जो चाहे जो है करोड़ों के फ्लाइट से ट्रैवल करे, 1 घंटे में नदानी जितने चाहे उतने पैसे खर्चे अपने ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम, एट द वेरी सेम टाइम, जो जनता है, जो देश की जनता है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर वो अपने ऊपर खर्च लीजिए भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश अगर जो है उन्नति किया रहेगा, हमारे देश के पास इतना पैसा रहेगा तो खर्चा हो आपके ऊपर में, लेकिन वो अगर नहीं दिख रहा तो तब ये प्रश्न उठ करके आते। तो हमें इन सब चीजों पे आप देखेंगे, हमें करना चाहिए डिस्कशन, लेकिन प्रायोरिटी डज मैटर। जब हमारी जनता सड़क पर बैठी हुई है, उसको डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो हम पहले उसके लिए ग्राउंड पे आकर के प्रोटेस्ट करें, हम उसके लिए धरने प्रदर्शन करें, कि हम इसलिए धरने प्रदर्शन करें कि ईडी समन भेज रहा है अखिलेश यादव जी को, या फिर सीबीआई गलत समन भेज रहा है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी जो है, शायद मुझे लगता है अपोजिशन के ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर में कोई डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना सीबीआई से ना ईडी से, बट उनको अलग अलग मामलों में समन्स ऐसे भेजे जाते हैं। तो हम उस पे वो प्रोटेस्ट करना जो है, हमें लगता है कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, रादर कि हम अभी ये प्रोटेस्ट कर ले कि हमारे छात्र लाइन पे लगे हुए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे किसान भूखे हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं, इसलिए जो आपको लगता हो कि हम ईडी और सीबीआई को लेकर के उतना मुखर ग्राउंड पे नहीं दिखते कि हमारा मार्च निकल रहा, हमारा मार्च जब भी निकल रहा होता है, अलग समस्या है उत्तर प्रदेश की। आपको कागज पे भले सब खूबसूरत दिख जाए, पर रियलिटी ये है कि जो मेजर उत्तर प्रदेश है, जो जीडीपी का मैक्सिमम हिस्सा है, आपको पता है ना कि इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है, जो पहले 55% हुआ करता, उसमें थोड़ी सी डिक्रीज आई हुई है, वो मुझे लगता है कि अभी अराउंड 48% कर रहा है, जीडीपी को अभी भी एड ऑन कर रहा है। तो वो ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष से। और आपको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, एंड वी आर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज ये है कि उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज है, हम पहले उस पर बात कर ले, फिर हम बात कर लेंगे अडानी के ऊपर में, फिर हम बात कर लेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ईडी का सम्मन आया, और फिर हम बात कर लेंगे कि इनके पास में जो है 8 लाख 10 लाख रुपए का आ रहा है चालान कट करके। हम ये सब चीजें शांति के साथ में पे कर रहे होते, जवाब कर दे रहे होते ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। आप सोचिए, हमने एफिडेविट भी दिया था इलेक्शन कमीशन को, देन दैट वाज आल्सो इन द डॉक्यूमेंटेशन। हम उसका तब तक सड़क पे आकर के नहीं कर रहे थे, हम अलग चीजों को कर रहे थे, जब तक कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर दिया गया, उनको गन पॉइंट पे नहीं रख लिया गया। बाई इलेक्शन में बहुत गंदी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को ट्रीट किया गया, तब हमारा जो है इलेक्शन मैम, the agricultural sector contributed 16.8% to Uttar Pradesh's GDP in 23-24. This represents an increase from the previous year's 13.7%. So it is not 50%, ma'am. It is not 48%. It is 16.8%. Agriculture contributes just 16.8% to the overall GDP of Uttar Pradesh. Dr. Pooja Mishra. Okay, मेरे कंफ्यूजन हो गया, ये सर्विस सेक्टर, I got confused with the service sector and the agriculture. And I want to talk to you, Dr. Pooja Mishra जी, यहाँ पर भी आंकड़े इस प्रकार से योगी जी दे रहे हैं. He says ground breaking ceremony, the 5th ground breaking ceremony, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और ये बिजनेस की बातें, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिशा पटानी, जो भी उनका धमकी देने वाले थे सबका एनकाउंटर करा दिया. योगी जी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, महिला सशक्तिकरण, आगे जाके तो हाउ डू, और फिर अभी योगी जी का पिक्चर भी आया है, और योगी जी अनटोल्ड स्टोरी. तो क्या आपको लग रहा है 2027 इतना आसान होगा जो आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? वो पिक्चर ही बहुत हिट हो गया योगी जी का. इनके जो है कुछ भी हिट हो सकता है, पिक्चर कैसे हिट होता है मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा कि टिकट्स के साथ में क्या किया जाता है. मुझे तो बहुत
लेट से पता चला। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज इनटू मूवीज और हु इनटू सीरीज, आई एम नॉट एट ऑल, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आई डोंट नो अबाउट द न्यू मूवीज एंड आई डोंट नो अबाउट द न्यू सॉन्ग्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मुझे तो जब ये दिशा पटानी के वहां पे फायरिंग हुई तब जाकर के पता चला कि दिशा पटानी भी एक्ट्रेस है और इनका घर यहाँ पे, उनके वहां पे फायरिंग हुई। आई माइट साउंड की नहीं पता है, बट नहीं पता है बिकॉज आई एम नॉट इनटू दोस स्टफ। पर आप देखिए कि दिशा पटानी के यहाँ पे फायरिंग होती है, फायरिंग होने के 10 जो है 1-2 दिन के बाद में एनकाउंटर होता है। आप देखिए कि जो गौ तस्कर होते हैं वो तस्कर फायरिंग मार देते हैं एक व्यक्ति को, फिर उसके बाद में एनकाउंटर होता है। आपको लगता नहीं है प्रदीप जी कि जब कोई नेशनल हेडलाइन बनाता है क्राइम तो उसमें एनकाउंटर हो जाता है? क्या छुपाना चाह रहे हैं ये? इससे पहले इनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड ज्यूरिडिक्शन। और जब हमारी सरकार बात करती है उत्तर प्रदेश की, वो हमेशा बात करती है ज्यूरिडिक्शन की, कि ये अगर यहाँ पे हुआ तो हम उसको जाकर के अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे या एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो वो ज्यूरिडिक्शन का पार्ट है, सजा देना गवर्नेंस नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। आपने कहा 2027 में कैसे आएंगे? 2027 में जिन छात्रों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया हुआ है, जब आज बेरोजगारी मेला लगा दे, ये आज बेरोजगार मेला लगा दे और आज देख ले कि उत्तर प्रदेश के कितने बेरोजगार युवा परेशान हैं। अभी इन्होंने बेरोजगार मेला लगाया था, परेशान हो गए, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो लोग सीबी फेंक करके चले जा रहे थे उत्तर प्रदेश के युवा। तो ये जो परेशान लोग हैं, जिनको ये दिखा नहीं रहे, जिनको प्रेजेंट नहीं कर रहे, ये हाइड कर दे रहे कर्टेन के पीछे कि हम इसको जो है ये सब चीजें नहीं चल रही हैं, वो लोग इनके अगेंस्ट में है और बुरी तरीके से इनके अगेंस्ट में ग्राउंड पे है और इनको इस बात की जानकारी है और इसीलिए ये जो है आकर के कुछ न कुछ ऐसा डाइवर्टिंग बात कर रहे होते कि हम धरातल पे रह करके बात ना करें। वो आप कितना भी दिखाते रहिए, जो सच्चाई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज पे आप कुछ कहना चाहते हो? 5th ग्राउंड ब्रेकिंग, 5वां योगी जी कह रहे हैं 5th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और इस 5th वाले में 5 लाख करोड़। तो क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी ऐसी है? 5 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज अभी जो है 12 यूनिट चालू किए हुए हैं, उसमें से कितने जो है टेंडर्स दे दिए उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स को, कितने जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे दी है। हम कह रहे हैं हजारों करोड़ का आप जो है ग्राउंड ब्रेकिंग करते रहिए, आप कहीं हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, जब तक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जब तक आपको कहीं से जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। अब उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए ना, कहाँ कितने किधर दे दिए हुए हैं। सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस को भी काउंट कर लेंगे, आप जीविका को भी काउंट कर लेंगे, जो पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं आता था, आप उन सब चीजों को एड ऑन करके बोलेंगे नहीं ये कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए हम इनको अंडर एम्प्लॉयमेंट ले जा रहे हैं। पर उसके बाद में जो रियल सच्चाई होती है कि नहीं होते, वो एम्प्लॉयड नहीं होते। कोई 1 महीने का एम्प्लॉयड है, कोई 15 दिन के लिए एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे चल रहा है, उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको आप ऐड करके आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। But they counted in the employment figures, ma'am. It all द्विवेदी जी, आप इतना रिडिक्यूल कर रहे हैं, यानी मोदी जी के जीएसटी 2.0 का तारीफ करने के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जीएसटी रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको 15 लाख रुपए वापस दो जो आपने प्रॉमिस किया है। तो ये क्या मजाक करना ठीक है? इतना सीरियस मोदी जी का दिवाली गिफ्ट है द्विवेदी जी, उनके कहना कि नौजवान एमएसएमईज को जिस प्रकार से बढ़ावा, जो कह रहे हैं कि अपने देशी प्रोडक्ट खरीदने का एक जबरदस्त मिसाल पूरे दुनिया को हम दिखा रहे हैं, तो बड़े बड़े एम्स लेके चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 15 लाख वापस दो जो पहले आपने वादा किया था, ये ठीक है क्या द्विवेदी जी? द्विवेदी जी देखिए सर, प्रदीप जी, बजाज जी, जी सर, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि 15 लाख इन्होंने वादा किया था सर। ये मैंने भी तमाम यूट्यूब पे देखा हुआ है, उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, तो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे सर। आप बताइए, झूठ बोल के आप कह रहे थे महंगाई की मार आपकी बीजेपी सरकार, मतलब इस तरह की बातें कि आपने की 50 रुपए में डॉलर था, आपने प्रधानमंत्री ने क्या क्या कह दिया था कि जिस देश का प्रधानमंत्री, अगर डॉलर का दाम बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आज 85 रुपए 90 रुपए डाला है। महंगाई की बात कर लीजिए आप, पेट्रोल डीजल से लेके रसोई गैस की बात कर लीजिए आप। तो देखिए इनका कहना करना, कथनी करनी में बहुत अंतर है सर, कि क्या कह रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक दिन वो भी था जब एक सांसद के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार नहीं बनाई थी। आप तो पार्टियां तोड़ दे रहे हैं, चुनाव चिन्ह ले रहे हैं, पार्टी का नाम ले रहे हैं,
विधायक तोड़ दे रहे हैं, जानकार नहीं बना पाते। अब तमाम स्टेट देख लीजिए, आपके निजाम सभी स्टेट हैं, स्टेट देख लीजिए आप, जहां जहां नहीं बना पाते वहां विधायक तोड़ देते हैं। अभी आप देखिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 526 वोट मिले थे पहले पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को, अब कितने वोट मिले? तो बात की इसकी बात ऐसे समझिए कि कथनी करनी में भारतीय जनता पार्टी के दिन पर दिन अंतर आता चला जा रहा, और कहे कुछ रहे हैं, करते कुछ हैं। कहते साहब नोटबंदी करेंगे, हम नोट 2000 के नोट चलाएंगे, इसका नोट चलाएंगे, इसके बाद हम कोविड में, आप महाराष्ट्र में देखिए हाहाकार मच गया था। अगर कोविड में आपने पूरा बंद कर दिया था टोटल, और वहां के लोग जो बेचारे उत्तर भारतीय फंसे थे सर, जिनकी मानी उद्धव ठाकरे ने ट्रेन में बिठाकर टिकट देकर उनको विदा किया था, क्या ये भारत सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दी? ये उत्तर भारतीय जो वहां पे फंसे हुए हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और जहां जहां उनको पहले अपनी जगह पहुंचा के 10-10 आदमी एक कमरे में रुके सर कोविड समय में महाराष्ट्र में, क्या उनकी स्थिति रही होगी? आज आप कह रहे साहब हम आत्मनिर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, तो ये कहना करना, कथनी करनी में सर अंतर है। मैं बहुत स्पष्ट बात करूंगा कि आप वो बात बोलिए जो बात आप कर सकते हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री करते रहे। आप मनमोहन सिंह की बहुत बुराई करते हैं, इंदिरा गांधी की बहुत बुराई करते हैं, राजीव गांधी की बहुत बुराई करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं, लेकिन उन्होंने जो देश को दिया, जो उन्होंने दिया देश को, वो उसका प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दे पा रहे हैं आज की डेट में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आकलन करने का विषय है कि आप आकलन करें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश को दे गए, उन्होंने अडवाणी के साथ यात्रा करके नहीं करने जाते थे, उनके माध्यम से पाकिस्तान में नवाज शरीफ से मिलने नहीं जाते थे सर। आप उदाहरण कोई उदाहरण देख लीजिए, संजय कितने उदाहरण आप देख लीजिए। संजय जी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 15 लाख वाली जो बात है, वो भाषण मैंने न जाने कितनी बार सुना है, थोड़ी देर के बाद वो दिखा भी देंगे हम लोग। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख डालने वाला हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर जो काला धन स्विस बैंकों में है, अगर वापस आ जाए तो हो सकता है हर एक को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं, ये कभी नहीं कहा सर, मोदी जी ने कभी नहीं। सर नहीं, काला धन वापस आने की जिम्मेदारी किसकी सर है? आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, काला धन वापस आ जाए चाहिए, ख्वाब दिखाने की जरूरत थी देश की जनता को, वोट लेने के लिए, आपको हराने के लिए बनेंगे, तो आपको हराने, सर वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो जुमला कोई तो अपराध बने सर, कोई आश्रम थोड़ी चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं ना सर, उसको पार्टी कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए। जुमला बोल की पार्टी चलाएंगे। बीजेपी का कहना है महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी था जो स्वदेशी का पुकार दिया था, और महात्मा गांधी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी है जो स्वदेशी का नारा लगा रहे। कल देश को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाओ। एक महात्मा गांधी थे और दूसरा नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी का कहना। द्विवेदी जी देखिए, वो 15 लाख रुपए दे रहे थे, किसानों के ऋण माफ कर रहे थे, तमाम ऐसे उदाहरण मैं दे दूं आपको भी, महंगाई कम कर रहे थे, बेरोजगारी कम कर रहे थे, क्या कुछ हुआ? आप मुझे बता दीजिए। अब गांधी जी बेचारे उनका कैसे रहते थे? लाठी लेके एक कुर्ता पजामा उसमें रहते थे, ऊपर पहनते भी नहीं थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमके वस्त्रों की, सर गांधी जी बिरला हाउस में रहा करते थे, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, कुछ भी पहने कैसे भी चले। सर 30 जनवरी मार्च पे बिरला हाउस में रहते थे सर। तो खादी क्यों नहीं पहनने का? स्वदेशी अपनाना चाह रहे हैं, स्वदेशी में सबसे पहले खादी है, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को खादी के कपड़े पहनने चाहिए सर। अगर स्वदेशी अपनाना है तो, ये मैं कह रहा हूं सर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर स्वदेशी अपनाना है तो खादी का कपड़ा सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को पहनना चाहिए सर। तो कल उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ स्वदेशी ही पहनता हूं, मेरे अंग में जो भी है हर चीज स्वदेशी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो आप महात्मा गांधी जी के पुकार और मोदी जी के ज्यादा फर्क नहीं है। बीजेपी का कहना है स्वदेशी अपनाओ, आई बाई स्वदेशी, नया स्लोगन। कैसे फर्क नहीं है सर? महात्मा गांधी साहब तुलना कर रहे हैं सर, जो खादी के वस्त्र पहनते थे सर, उन्होंने तमाम खादी आश्रम चलवाए सर। कैसे नहीं सर? आप ये कैसे कहते फर्क नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है सर। अहमदाबाद में एक दुकान है, पहनते थे, ये करोड़ों रुपए कपड़े पहनते हैं सर, चश्मा 1 लाख रुपए के लगाते हैं, तो सर वो अहमदाबाद में दुकान है एक,
वहीं से मोदी जी अपने कपड़े सिलवाते हैं। उसका नाम है जेड ब्लू करके दुकान है उस, वो स्पेशल खादी बनाती है सर, सिल्क खादी बोलते हैं उसको, जो खादी भंडार उद्योग वगैरह वगैरह वहां पर भी बिकता है, उसी का मटेरियल लेकर के वो मोदी जी अपने कपड़े बनवाते हैं। क्या एक रेवोल्यूशन है द्विवेदी जी? महात्मा गांधी जब पुकारा था स्वदेशी, एक देश में एक लहर चला, रेवोल्यूशन चला। मोदी जी कह रहे हैं इसी ऐसे ही मोदी जी के जो ललकार है बाय स्वदेशी, एक रेवोल्यूशन होने वाला है इस देश में, एक जबरदस्त चमत्कार होने वाला है इस देश में। द्विवेदी जी देखिए सर, मैं पहले बजाज जी की बात जवाब दे दूं। प्लीज। हाँ, आपने कहा था वो वहां से रेशमी पहनते हैं सर, तो गांधी से तुलना कहाँ हो गई सर उनकी? क्या गांधी जी रेशमी पहनते थे सर? सर गांधी जी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था ना सर, गांधी जी के पास मोबाइल वो फोन सब तो था ही साधन नहीं नहीं सर किसी थे के पास। जो आज हमारे पास हैं। उसमें सर जैसे सर उसमें किसी सर को हर नहीं था चीज सर। इवॉल्व होती है। जैसे मैं और आप सर, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, गांधी जी के वक्त वो सुविधा नहीं थी, हर चीज आगे अरे बढ़ती सर है ना सर। मोबाइल फोन तो उसमें था ही नहीं, किसी के पास नहीं था सर। करेक्ट है। सो तो मेरा ये कहना है जैसे 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 वक्त बदलता रहता है वैसे वैसे लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन तो एक आदमी से आ सकती है ना। और हर जगह पे जहां पर भी मोदी जी ने कुछ भी किया है वो खुद बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोलते हैं। जैसे कोई नया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है वो हमेशा गांधी जी के नाम से लॉन्च किया है, वो तो खुद बोलते हैं। इनफैक्ट प्रदीप जी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन जो है, आध्यात्मिक प्रेरणा उनको गांधी जी से मिली है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। बोलिए सर, बोलिए। भगवान हनुमान जी को प्रेरणा मिली थी, उन्हें भगवान श्री राम प्रेरणा मिली थी, अब उनसे प्रेरणा मिलती बंद हो गई सर क्या? अब वो महात्मा गांधी से प्रेरणा ले रहे हैं सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई, माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी, तो क्या उन लोगों को प्रेरणा नहीं मिल रही आज की डेट में सर? सब टोटल प्रेरणा चलेगी महात्मा गांधी जी के पास। बिकॉज द्विवेदी सर जी ये सब कहने की बातें सर है। बाला साहब का दिखाने की सपना बातें हैं। मोदी जी ने पूरा किया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने ये पूरा सब किया। आर्टिकल दिखाने की बातें 370 हैं, राम मंदिर, कहने की बातें राम हैं, मंदिर, झूले सब हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, मोदी जी वही सपना पूरा कर रहे हैं। स्वदेशी महात्मा गांधी का पुकार मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो ये तुलना है द्विवेदी जी। आप जिन लोगों को भूल जाते हैं मोदी साहब याद रखते हैं, बीजेपी का कहना है। भाई मोदी साहब पहले भगवान श्री राम को याद रखते थे, हनुमान जी को याद रखते थे, वो मंगलसूत्र करवा रहे थे, 50 करोड़ की जर्सी गाय बना रहे थे, विधवा औरत कह रहे थे। सर आप मिक्स कर रहे हैं 50 करोड़ की शशि थरूर साहब की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सर ना, हम लोग ना कह रहे हैं। सर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नौकरी मिलेंगी सर, 2 करोड़ नौकरी भी तो कहा था सर लेट्स नॉट वो भी मिक्स गलत है क्या? राइट। दो बट आई टेल यू व्हाट बिफोर वी गो, I just want to ask Pooja Mishra ji one very important thing. अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर नौकरी पर ही है सर, अखिलेश कहा था सर 2 करोड़ नौकरी पर ही है। अच्छा डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने आरोप लगा दिए हैं योगी गवर्नमेंट पर, योगी सरकार पर कि आपने बंदूकों को ज्यादा प्राथमिकता दिया किताबों से। यू एनकरेज गन्स ओवर बुक्स। आप बंदूक लेके हमारे नौजवानों को रशिया भेज रहे हो, इसराइल भेज रहे हो टू फाइट वॉर्स। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। हाउ ट्रूथ इज दैट? कितना उसमें सच्चाई है? आकर के रशिया भेजा गया हुआ था, रशिया भेजा गया हुआ था। कहा के लोग ज्यादा गए तो जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है, युवा की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। आपको पता है कि हमारा जो पिरामिड है, एज पिरामिड है, वो जो है इन्वर्टेड है। हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स ज्यादा है, युवा ज्यादा है। आपने कैंप लगा कर उसको बाहर भेज दिया हुआ है। और उसके बाद में अभी जो है चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जब इन्होंने नोटबंदी की हुई थी ना, तो हम लोग घर पे कन्वर्सेशन किया करते थे कि ये बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, ये बार बार गांधी जी की बात करते। गांधी जी से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ गांधी जी, कहाँ आपको तो कंपैरिजन करने से पहले खुद को धिक्कार लेना चाहिए, खुद ही खुद से, कि जो है गांधी जी जो एक दुशाला पे पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनको वहां फॉरेन पे जो है गए थे, उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, लेविस लाइफ छोड़ करके चले आए। और कहाँ आप लेविस लाइफ पकड़ लिए। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद को कंपेयर मत करना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि जो है हम नोटबंदी करेंगे डिमोनेटाइजेशन करके। आपको पता है राजीव जी, प्रदीप जी, कोई इकोनॉमिकल गेन नहीं हुआ था नोटबंदी से। लॉस हुआ है मैम। व्हाट डू यू मीन गेन? यू आर बीइंग वेरी पोलाइट। आप तो बहुत तमीज से बोल रही हैं। इनका टारगेट था कि हम महात्मा गांधी जी की जगह पे आ जाए डिमोनेटाइजेशन करके। बहुत महत्वाकांक्षी हैं।
और उसी महत्वाकांक्षा के तहत ये काम करते चले जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की जो है, हम लोग बहुत जाना नहीं चाहते हैं कि हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बड़े जो है अच्छे व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, एज अ ह्यूमन बींग भी अच्छे हैं। जब हमें बुलाया गया था एक बार कि आप लोग कितना भी डिबेट करेंगे, कभी किसी के पर्सनल लाइफ के जो रहे हैं, जो दब चुके हुए हैं, उस पर कभी डिस्कस नहीं करेंगे। Correct. तो हम लोग कितना भी किसी की जीवनी पढ़ लेते हैं, आप देखेंगे समाज पार्टी के जो है कोई भी प्रवक्ता इसको निकाल करके नहीं बोलता है कि उनके जीवनी में ये भी था, जिनके उनके कार्यकाल में इस साल में इन्होंने ये किया था, वो नहीं बोलते, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है ना, उनका नेचर ऐसा है कि लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत की जो कॉल उन्होंने अभी दी है, डोंट यू थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर? क्योंकि देखिए साहब, हम एक्चुअली 156 करोड़ हैं। इट वाज ऑलवेज द नीड ऑफ द आवर। और अभी जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं कहूंगी ये फॉल आउट है, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट। जब आप जीएसटी लगा रहे थे एट दैट टाइम, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस क्यों नहीं किया? वो 17% से 12% कैसे पहुंच गए जीडीपी का शेयर में? आप साल भर में चाइना से, पहले आप जो है चाइना को गलवान के बाद में कह रहे थे कि हम बॉयकट करेंगे, आपने तब अल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढा? ये फॉरेन पॉलिसी कहती है। सबको पता था कि जब ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट, तो ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है और उसको पता है कि भारत जो है सबसे बड़ा मार्केट है और वो कोशिश करेगा कि इस बड़े मार्केट को मैं कैप्चर करूं। एक बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए होता है? मार्केट चाहिए होता है। तो आप कैसे नहीं तैयार रहे? आपको लगा था हम मित्रता कर रहे हैं उनसे, आप क्यों नहीं तैयार रहे कि मैं उनके लिए मार्केट हूं? जब मौका लगेगा, अगर हम इनके लिए मार्केट एज अ मार्केट बिहेव नहीं कर सकते, हमारे अपने क्राइटेरिया है, हम किसी के लिए खुले आपसे मार्केट तो बन नहीं सकते हैं। तो जब हम इनके लिए मार्केट नहीं बनेंगे तो ये हमारे ऊपर छोड़ा घूपेंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही थी उस वक्त में? ये कॉमन है कि जो कॉमन इंसान, मैं कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं जानता, पर ये मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने कंट्री का ही सोचेगा, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा भाई? चाइना भी अगर आज हमारे पास में आकर के खड़ा हो रहा है, वो भी देख रहा है कि हम मार्केट है उसके लिए, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। साल भर में हमारा यूएस के साथ में खटपट क्या चालू हुआ, उसका जो है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट 25% जंप कर गया हुआ। तो आप इतने समय से जब आप ट्रेड डेफिसिट विद चाइना नाउ मैम, के साथ में, तो आपने क्यों नहीं तैयारी? पूजा मिश्रा जी, the trade deficit with China now is $99.21 billion, which is approximately $100 billion. That is the trade deficit. And the overall trade, I think people should know this. लोगों को ये जानने की बहुत जरूरी है। ओवरऑल ट्रेड जो चाइना के साथ है ना हमारा, इट इज जस्ट $113 बिलियन। मतलब सिर्फ $13 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और 100 बिलियन और ऑलमोस्ट 120 odd billion dollars we take back from there. So the trade deficit comes to around $100 billion. I mean, I don't see it disappearing. आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जैसे प्रदीप जी और हम बात कर रहे थे शो शुरू होने के पहले, आज आपके जो दिए हैं दिवाली के, गणपति के, माता की जो मूर्तियां हैं, गणपति की जो मूर्तियां, सारी मेड इन चाइना है। मतलब एंड इट इज ऑल योर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। अरे जो झाड़ू है, घर में जो झाड़ू लगता है, वो भी मेड इन चाइना है। और जो नवरात्रि के फूल है, दिवाली के फूल है, वो अभी ओरिजिनल फूल कोई खरीद रहे नहीं। दे आर ऑल बाइंग दिस आर्टिफिशियल फ्लावर्स व्हिच एक्चुअली लुक मोर ब्यूटीफुल एंड एंजॉय and they last for 20 days. and तकलीफ है द्विवेदी जी। So we really are in a bad state. But I tell you what, before we go, if you have the time, stick around. And if you don't, thank you very much for joining us. द्विवेदी जी ने जो बोला, I would like to show that speech of Mr. Modi के 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। Can we have it on, please? Can we show that speech of Mr. Modi, please? उनमें क्या जीएसटी लगी है? उसमें जीएसटी लगी है सर, जीएसटी लगी है उसमें। Can we show that speech, please? Speech, please, of Mr. Modi. मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? That's what he said, but he didn't say कि मैं दे रहा हूं। He said मुफ्त में मिल जाएंगे। But I'll tell you what, the people are absolutely right, because बाकी बीजेपी के जितने भी नेता थे ना, उन्होंने ये कहा था,
बाकी बीजेपी के जितने भी नेता थे उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे हैं, तभी मोदी जी अकाउंट खुलवा रहे हैं आपका। Genuinely, But I was also impressed, Dr. Pooja Mishra ji, Akhilesh Yadav ji was one of the few people who said, Yes. आज स्विस बैंक में 300 गुना पैसा गया है इस देश से, गया है। 300 गुना पैसा इस देश से स्विस बैंक अकाउंट्स में है, तो अगर पहले ला नहीं सकते अब और बढ़ गया है, तो व्हाट इज, हाउ डू यू सी दिस, क्या, और इस पे कोई जवाब नहीं है सरकार की तरफ से? डॉक्टर मिश्रा, पूजा मिश्रा जी आपको आवाज आ रही है? मुझे थोड़ी बहुत आवाज आई उसमें कि जो स्विस बैंक में मैं भी देख रही थी कि ऐसा नहीं 300 गुना इतने सालों में हुआ है और 2023 से लेकर के 24 भर में 3 गुना हो गया है। तो ये जो करप्शन का साइकिल चल रहा है वो ऐसे थोड़ी चल रहा है, साइकिल नहीं कहूंगे मैं, इसको लूप कहूंगे। जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, जिस लूप से टोर्नोइड जब सिखाते हैं बच्चों को, तो टोर्नोइड हो रखा हुआ है वो जनरेटर वाला, कि आप फ्रैक्शन आउट नहीं कर पाएंगे कि करप्शन का चैनल कहां से कहां चला जा रहा है और कब किस स्विस बैंक में चला जा रहा है। बस आपको इतना पता है कि लाइट जल रही है भाई, स्विस बैंक में पैसे जा रहे हैं, और ये करप्शन का साइकिल बहुत गंदे तरीके से बन करके रखा हुआ है। और ये जो आप कह रहे थे कि 15 लाख उन्होंने कहा था कि आ जाएंगे और बाकी सब लोगों ने कहा हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्विस बैंक से पैसे हम ले आएंगे। जी ला, ये डिमोनेटाइजेशन किया था, ये कहा था, ये क्लियर कट कहा था, ये बिल्कुल कहा था कि वे हम ले आएंगे। जब आप कह रहे हैं कि हम स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे, और स्विस बैंक से अगर पैसे आ जाते हैं तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हो जाएंगे, इतना बन जाता है शेयर, तो इट मींस कि आप जो है ले आएंगे। और आपने ले रहे क्या बताया, देश के पैसे पूरे ले जाकर के पहुंचाने, बहुत महत्वाकांक्षी आदमी, इनका इच्छा यही है कि जो है गांधी जी को रिप्लेस कर दे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। वो जो आदमी दुशाले में जिंदगी बिताया हो और आप करोड़ों का जो है कपड़ा पहन, तो आपको लगता हो कि पूरी लग्जरी से आप अभी क्या ना स्वदेशी में के तो स्वदेशी कार यूज कर लो, स्वदेशी चश्मे यूज कर लो, स्वदेशी रिंग्स यूज कर लो, स्वदेशी वॉचेस यूज कर लो। हमने कहा बिल्कुल क्लोथ सही कह रहे हैं कि वो खादी की क्लोथ पहनते हैं, खादी में बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, तो आप पहन लो, हाई ब्रांडेड पहन रहोगे, पर एट द सेम टाइम आपने स्वदेशी पे काम नहीं किया हुआ है। एमएसएमई जो है, आपको जब जीएसटी लागू हुआ तो 50% एमएसएमई बंद हो गया था, स्मॉल सेक्टर्स कंपनीज बंद हो गई थी जीएसटी के लागू होने के बाद। अब आप उसमें रिफॉर्म लेकर के आए हुए हैं, और वो रिफॉर्म भी कब तक रहने वाले कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार में कब क्या कहाँ हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जब जब देश को बर्बाद करना होता है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, देश के नाम एक संबोधन कर देते हैं और देश को जो है लगभग 500% और गिरा देते हैं, और जो इनका करप्शन का काम चल रहा है उसको और बढ़ा देते हैं लगभग। नो, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, यूपी का बहुत कंट्रीब्यूशन है ये स्विस बैंक अकाउंट्स में। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पूरा ब्यूरोक्रेट्स का पैसा स्विस बैंक में है, मंत्रियों का पैसा स्विस बैंक में। करप्शन हाउ ह्यूज से स्केल इन यूपी, किस प्रकार से? प्रदेश गरीब देश नहीं है, उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेश नहीं है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने जब एक कार देखी जिसका टैक्स बस इतना था ना, मैंने वो कार देखी यहाँ पे, उसका टैक्स बस इतना था कि जो उसका दाम अगर आता, जो उसका दाम था उसके 3 गुना उसको विदेश से लाने का टैक्स था। जब मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में गरीबी नहीं है, बस पैसा जो है चंद लोगों के पास में है, और यही सच्चाई पूरे देश में है। हमारा देश जो दिखता गरीब है वो गरीबी नहीं है, बट ये है कि जो पैसा है ना वो बस महज कुछ पॉकेट ऑफ पीपल के पास में है, बाकी लार्जर सेक्शन के पास में नहीं है। दैट्स व्हाई वो जो विजिबिलिटी, आप सोचिए कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि वो साइकिल नहीं अफोर्ड कर पा रहा है एक ऐसी जगह पे, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो कार का दाम है उसके 4 गुना 10 गुना जो है वो टैक्स पे करके उस कार को लेकर के आया। उसको सोचिए कितना लेविश है, उसके पास में कितने पैसे पड़े हुए हैं, और ईडी नहीं। You're talking about the liquor baron. You're talking about the liquor baron of Uttar Pradesh. He just imported a Rolls-Royce Silver Sprite, जिसकी normal price जो है वो which is around 3.5 crores. I think he paid about 15 crores to get it to India. Wow, amazing. Some people will do anything. And the bureaucrats are contributing to Swiss banks. Of course they are. The ministers are contributing. UP ministers, bureaucrats. Anyway, thank you very much. Pooja ji, all the very best to you. Lovely talking to you. As always, keep up the good work. God bless you. और एक बार फिर जय माता दी, नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार। Well, I tell you what, the Prime Minister did say, if you noticed in that speech, that देशवासियों को हक बनता है उस पैसे पे, 15-20 लाख का तो हक बनता ही है। So it can be interpreted either way, ऐसी क्या बात है। No, but I do have a problem with the 300% increase. Yes, that's in Swiss bank accounts. Yes. Because where did you get the figure from? Has the Swiss government released it? Because I've not been able to find
anything which says that. And even if it is 300% increase, you are allowed, lots and lots of industrialists are allowed to keep money in Swiss banks. Yes. Because Swiss banks are no longer as opaque as they used to be, which is why places like the Isle of Man, Cayman Islands, Virgin Islands, these have now taken precedence over Swiss banks, because the Swiss government has been forced to tell their banks to reveal most of the details of what they have in their banks, unlike their lockers, of course. But all I'm saying is this white money, is this genuine business money, or is this black money? We don't know that. God knows, because you're allowed But to at trade. least you have to have investigation. Why not in Indian bank? Why in Swiss bank? Because it is easier for money to be in a Swiss bank or in any European bank to do business in Europe. It's much, much easier to move the money instead of No, an but Indian bank. BJP, I mean, the government does not answer the query. It is a person who has come into government by saying that ये काला धन, especially Swiss bank को target करके बोला था. और आज, if you justify the 300% But actually even that does not apply. all white money. Sir, even that does not apply. For example, if you're doing business anywhere in India and you have that license for foreign trading and for foreign investment, etc., even an Indian bank via State Bank of India, you can transfer within 2 hours, 3 hours, 2 or 3 घंटे लगते हैं maximum. और 2 आप, घंटे. you know, you got SBI branches all over the world. And got among other places, France is a country where even UPI is accepted. So that's right in the heart of Europe. So I'm not So sure. the point is, Indian banks भी हैं ना सब पूरे दुनिया में. You got Indian banks there also. So why have you parked your money in these Swiss Yes. banks? And how is it 300% from what it was 3 years ago? Exactly. तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर तो भाई तहकीकात होनी चाहिए ना, इसको ईडी को मुझे लगता है या किसी और एजेंसी को तफ्तीश करनी you know, चाहिए. they carry the campaign for some time and then they leave it. Because they themselves have money there, isn't it? अपना खुद का पैसा होगा वहाँ पे. सबसे सर देखिए ऐसा है, बीजेपी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है उन्होंने कांग्रेसियों से ही सीखा है ना, क्योंकि this is the natural ruling party of the country, the Congress party. और आज की तारीख में अगर आप देखें तो तकरीबन 40% जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस के ही लोग हैं ना उसमें. And I heard the discussion and debates in महाराष्ट्र विधानसभा. कोई भी अगर ऑपोजिशन कोई उठाता कि आपने करप्शन नहीं दिया तो उस नेता का पूरा फाइल लेके फडणवीस खड़ा हो जाता है. बोले आपने ये, तो इतना डर जाता है ऑपोजिशन अपने ही फ्रॉड से कि बात ही नहीं करते. They have stopped talking at all. बात ही नहीं करते. Sir, in India, let me tell you very frankly, corruption has become a joke. It's a political joke. Let's be very clear. कोई भी politician है, if he is being targeted by any of these agencies, उसके लिए that is उसको जो समन्स आता है ना, that summons is actually an invitation to join the BJP. वो निमंत्रण पत्र है कि भाई इधर आ जाओ. और इसीलिए भी है कि आपने काले धन कमा तो लिए, अब आपने कमा लिया है तो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन इधर भी करिए उसमें से, सीधी सादी बात है. I mean, it's not a joke. That's exactly what is happening all over the country. But even that is acceptable. I'll tell you what, people in India are such that कि वो भारतीय लोग जो हैं वो हर चीज मान लेते हैं, यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो कोई काम करो. वो तो ये बोल रहे हैं, please do something for us. And let me tell you, if the Prime Minister actually goes through with this Atmanirbhar scheme of his, कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, it will be a bonanza for India, it will be great, and especially great for people like us. Let me tell you very frankly. Make in India, buy in India. That's it. Be Indian, make Indian, buy Indian. That's it. That's what you've got to do. You are 156 crore people. Why does China want a very great relationship with India? Only because of the fact that you are 156 crore customers. आज जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ तकरीबन $100 बिलियन का है, प्रदीप जी, China wants it to go up to $200 billion. That we should be dependent totally on them. कि हर चीज के लिए चाइनीज, हर चीज के लिए. आप देख लीजिए चैनल के लिए भी, ये तो भला हमारी इंजीनियरिंग स्टाफ का, we were getting Chinese products at about 1/3 the price. Yes. So, and which would have lasted for maybe 15 days or 20 days, or would not even have started. There is every possibility. So all I'm saying is, at the end of the day, India has to realize her own potential. We have to make for ourselves. जो गांधी जी ने बोला ना आत्मनिर्भरता, उसके बाद नेहरू जी ने उसको आगे किया. सीधी सादी बात है साहब. That is the only way forward in today's world, because you never know what the United States of America or Europe is going to do next. You don't know that.
अगले दिन ट्रम्प साहब कुछ और कर दें और ट्रम्प साहब की जगह पे कोई और ट्रम्प 2.0 आ जाए, फिर क्या करोगे? And now it's scary that every time Trump praises, you should know कि कुछ दिनों में कुछ बड़ा हिट होने वाला है। कि जहां ट्रम्प साहब ने मोदी जी की तारीफ करी अपने ट्रुथ सोशल पे, इसका मतलब ये होगा 2 दिन के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगी भारत के खिलाफ। कहने का मतलब ये हो गया। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही। अली दारूवाला साहब वापस नहीं आए, भाग गए। तो दारूवाला साहब वापस नहीं आए, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। मैं देख रहा हूँ बहुत एक्टिव हो गए हैं वो हर जगह पे, हर रोज कहीं चीफ गेस्ट हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है। नो वंडर हिज वाइफ इज सो एंग्री विद हिम, घर पे रहते ही नहीं है। फिलहाल दैट्स ऑल दैट वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। To the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. किसी को याद आ गया घंटी बजाने। भाई आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.